Moving ahead with the part of epithelial tissue, today we'll talk about a related part of epithelial tissue, what is called as the different types of cell junctions. As we know, since we are talking about tissue is, we are being told, we are studying that tissue is nothing but a group of cells together. And when these multiple cells are coming together, there are certain things about this congregation, about this crowd of cells that we need to know. Junctions are actually a kind of contacts that the cells establish with one another. And there are three different types of junctions, mean three different types of contacts that the cells within a tissue establish with one another. In that first type, is called as the tight junction. Now, as the name indicates, here you need to understand that this junction to avoid any kind of leakage from the cells, because the cells are crowded around one another, gathered around one another. Here I have shown some intracellular space. It's not necessary that you should always show intracellular space. They might be tightly packed, loosely packed, whatever it is. If we are talking this with respect to epithelial tissue, we have seen that in epithelial tissue, cells are always tightly packed. But then we also need to understand that the cytoplasmic content of the cell should not leak out, because cell contains a very large amount of water and so many organic and inorganic materials dissolved in that water, as well as multiple materials that are not undissolved, that have remained undissolved in the cytoplasm of the cell. So we are inside the cell, we are having dissolved material also and undissolved material also, basically into the cytoplasm of the cell. And we are talking about this material should not leak out, ooze out of the cell. That's why cells are having pores in them, and yet from those pores the cytoplasmic material does not come out, it does not ooze out, it does not leak out, because of the presence of what is called as the tight junction. It's an easy name, don't worry about it. Okay, so you have tight junction, you have adhering junction, these junctions help in holding the multiple cells together in a group. A very wonderful word that has been used in the NCERT textbook. It says that adhering junctions help in, this is a lovely word, they help in cementing the various cells together. See what word they are using? They are saying cementing. That means cement. Now this word generally we associate with construction, building. And cement is the material that is basically used to fix the things together. So it is acting, adhering junctions are helping to keep the cells together, as well as it is providing strength to that group of cells together. Okay, that word is most important when it comes to adhering junction. Third part into it, you have what is called as the gap junctions. Now with respect to gap junctions, as you can see, these are small gaps, these are smaller pores that are present in between the cells. See, a cell is continuously performing some or the other biochemical reactions,
and those biochemical reactions are important for their own survival. But at the same time, we need to understand that cells exchange material within themselves, among themselves, as well as they also exchange material from their surrounding if the surrounding is holding anything worth transporting and exchanging. So, if you are keeping the complete cell closed, there are only walls. If there is no door and window to a cell, if we consider a cell as a room, and if we are saying that there are no doors and windows, you see, it will be difficult for the cell to remain alive, because the cell needs to export certain materials, import certain materials, and for that it requires its own doors and windows. Those doors and windows are in the form of gap junctions. So what are gap junctions? Gap junctions basically allow the, we can either use the word transport or we can use the word exchange. They allow the transport or exchange of material between two adjacent cells or between the cells and their surrounding medium. ये दो कितनी अपोजिट चीजें देखिए. Tight junction is not allowed, or it does not allow any material to leak out. Loss नहीं होना चाहिए, लेकिन interaction होना चाहिए. You're getting this? Okay? Just, I'm giving you some time. Just very quietly look at this, what we have written. Because these three things, they are very, very important. Almost every alternate exam, they have asked this. At least one of them, they have asked. How you can ask? You can ask them in the form of match the following. Or you can give a statement and ask them about find which is the correct statement, which is an incorrect statement. You're getting this? So just look at it for a minute and see that you are understanding the differences between what is a tight junction, what is adhering junction, and what are the gap junctions. Fine, okay. Now, moving ahead. In previous two lectures, since we started with the chapter of structural organization in animals, in past two lectures related to this chapter, we discussed in detail about the epithelial tissue. We discussed about the simple type of epithelial tissue as well as the compound type of epithelial tissue. Today, our main topic of discussion is going to be the compound type of epithelial tissue. Compound epithelium. I'm sorry. Our main, like I said, yesterday only we discussed about compound epithelium. We saw keratinized and non-keratinized compound epithelium into it. Okay, keratinized epithelium was the epithelium that contained keratin and hence it was waterproof in nature. While your non-keratinized, because it was not containing any keratin, that's why it became, or it showed kind of moistness into it. That was part of your epithelial tissue. Today, moving ahead, we have to talk about the connective type of tissue. If you look into the branched flow chart that we have drawn with respect to a connective tissue, with respect to the different types of tissues found in human body, there we have written that there is epithelial tissue, connective tissue, followed by your muscular tissue, and finally the nerve tissue. In these four types of tissues, we realize that the maximum diversity, maximum categorization, and maximum types and varieties are found in the connective tissue. Now, with respect to connective tissue,
The first day when we started with structural organization in animals, that day only I told you that with respect to connective tissue, we need to understand that this connective tissue is, by the name itself, it suggests that it is concerned with you are calling it connective tissue because basically it is helping in connection. Okay, it is helping to connect different types of tissues and different types of organs together. आगे आपके ध्यान में आएगा as we will be looking into their details. Here, a very important thing is that within a given कनेक्टिव टिश्यू, एक ही किसी प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में आपको एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स मिल सकते हैं. जरूरी नहीं है एक ही प्रकार के. जैसा आपने देखा स्क्वैमस एपिथेलियम में एक ही प्रकार के सेल्स है, क्यूबॉइडल में सब क्यूबॉइडल शेप्ड सेल्स है, कॉलमनर एपिथेलियम में सब कॉलम लाइक सेल्स है, सीलिएटेड एपिथेलियम में सब ऑल द सेल्स आर कंटेनिंग सीलिया ओवरेट. वहां पे जैसा सिमिलरनेस था, सिमिलैरिटी था, वैसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे भी वैसा रहेगा. कनेक्टिव टिश्यू में काफी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि उस टिश्यू में एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल्स, ऑफ कोर्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल सेल्स, बट दे माइट बी द मल्टीपल सेल्स माइट बी ऑफ द सेम टाइम और माइट बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दैट इज व्हाट बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से हियर. Another important thing here is that generally you see whenever we think of cell, whenever we talk about a cell, automatically we draw a nucleus to it, and along with the nucleus we also show, what is this? I hope you understand. In most cases when we are drawing a cell, we automatically show cytoplasm into it, which is correct, which is fine, okay. But an important point I want to make it here, that in connective tissue, all the different types of connective tissues that we are going to look into, a very important characteristic feature of connective tissue, और ये सिर्फ connective tissue के बारे में ही मैं statement use कर रहा हूँ कि the cells of connective tissue are surrounded by dense matrix. This is a very important statement. What we are saying is, of course, like when we are talking about a tissue, tissue is naturally group of cells together. Okay, so there are multiple cells. Those cells are containing cytoplasm in it. But at the same time, a very unique feature about connective tissue is that there is also some liquid material, semi-solid or jelly-like material outside the cell also. And that extracellular surrounding the cells of connective tissue are surrounded by, cells of connective tissue are surrounded by a dense material. This material is called as the matrix. ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये पॉइंट कई बार पूछा गया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट if we talk about from the exam point of view, and this thing is applicable, this information is applicable only to the part of connective tissue. Are you getting this? Okay. Then again, another wonderful feature is that connective tissue generally contains fibers in the matrix. It contains fibers in the matrix.
I am using the word generally because this point is not applicable to all the connective tissues. Like your areolar type of connective tissue that we will be talking today, it contains fibers. Your different types of connective tissues, they contain good amount of fibers into it. But then I am not saying, or we are not writing ki all the connective tissues contain fibers in them, because like we can very well talk about, like if we talk about blood, blood is also connective tissue, but it does not contain fibers in it. You're getting this? Okay. Another important point I want to add here is that the cells of connective tissue are surrounded by dense matrix. Now, why does it become dense in nature? It becomes dense because this matrix is containing chemicals called as polysaccharides. If you have the textbook with you, when you will be reading this part, you should properly underline this word. This word is given in the textbook, don't worry about it. But you need to properly underline it. It's a very important word. Tomorrow they might ask you about the contents, about the composition of matrix. What makes that matrix dense? What makes it semi-jelly like? There we need to know that it is dense in nature because it contains polysaccharides. In most cases, now see, this is one statement that generally comes, that connective tissues are highly vascular in nature. ये स्टेटमेंट बहुत सारी जगहों पे आने वाला है, सिर्फ इस चैप्टर में ही नहीं, पूरे बायोलॉजी में हम बार बार कई जगहों पे हम ये पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि दिस मटेरियल, दिस टिश्यू, दिस ऑर्गन, दिस साइट, दिस रीजन इज हाईली वैस्कुलर इन नेचर. Every time we shouldn't get confused, I don't know what it means. It's a very simple thing. See, when you are reading somewhere that this area is highly vascular, vascular is, it means that it contains very large number of blood vessels. Vascular means containing blood vessels. And if any area is highly vascular, that means it is containing very large amount of blood vessels. Automatically it means that that region receives large amount of blood. ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है, इसलिए आप उसको हाईली वैस्कुलर कहते हैं. और ब्लड वेसल्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो ब्लड वेसल्स उस एरिया में, उस रीजन में, उस टिश्यू में बहुत बड़ी मात्रा में क्या लेकर जाते हैं? वो ब्लड लेकर जाते हैं. अभी ब्लड जब ऐसे एरियाज में जाता है तो वो क्या ऐसा खेलने के लिए थोड़ी जाता है. When blood is going into some region, blood is carrying food, blood is carrying oxygen, blood is carrying multiple organic and inorganic nutrients, hormones, enzymes, ताकि उस एरिया में एक्टिविटी बहुत अच्छा चालू रहे. तो कहीं तो भी हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू इज एन एक्टिव टिश्यू. सभी टिश्यूज वैसे रहते हैं, लेकिन इसके बारे में इफ वी आर सेइंग इट इज हाईली वैस्कुलर, दैट मींस इट रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रेगुलरली एंड इट परफॉर्म्स इट्स एक्टिविटी कंसिस्टेंटली एंड रेगुलरली. समझ रहे हैं आप? ओके, हाईली वैस्कुलर. ऑफ कोर्स इसमें कार्टिलेज नाम का जो टिश्यू इसके अंडर हमें स्टडी करना है, उसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स नहीं रहते, उसमें नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स कम रहते हैं. ये भी यहां मुझे मेंशन करना जरूरी है. ओके, सो इन जनरल दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू योर कनेक्टिव टिश्यू दैट यू नीड टू नो प्रॉपरली. यहां पे और एक बात दिया गया है, व्हाट यू कॉल्ड एज द रेगुलर एंड इर्रेगुलर टाइप ऑफ टिश्यू, ऐसा भी एक दिया हुआ है. रेगुलर और इर्रेगुलर का मतलब ऐसा है, व्हेन यू टॉक अबाउट अ रेगुलर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स दैट द सेल्स of this connective tissue are regularly
covered with the fibers. As I said, there will be fibers, but the fibers are in a specific pattern. That is what is important. Okay, this, when the pattern of the fibers is fixed, that is called as a regular type of connective tissue. But sometimes what happens, you have the cells, but the pattern of fibers is not fixed. So here they are continuously running parallel. Here there is no fixed pattern of the fibers. That is called as, or this kind of a connective tissue is automatically called as irregular type of connective tissue. You're getting this? These two diagrams are already given in the NCERT. But many times looking at the diagram, we don't understand exactly what they are trying to tell us. आपका ध्यान इन फाइबर्स पे जाना चाहिए, हाउ दे आर लाइंग पैरेलल टू ईच अदर. यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ हैपहैज़ार्डली, ओके, या इररेगुलरली अरेंज्ड है, वो रैंडमली अरेंज्ड है वो. इसलिए जहाँ रैंडम अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. जहाँ रेगुलराइज्ड प्रॉपर अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इजी है, टेंशन मत लीजिए. ओके, बायोलॉजी इज इजी, बट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बहुत ही बड़ा और गहरा समंदर है बायोलॉजी, यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इसमें. अभी क्योंकि हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में आपने आगे जाके उसमें भी लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है. अभी इसमें लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम जब देखते हैं तो द फर्स्ट थिंग मेंशन्ड रिटन इज अबाउट द एरियोलर टिश्यू. दिस इज अ वंडरफुल टिश्यू, आई लव दिस पार्ट. एरियोलर टिश्यू पहले ही मैं बता देता हूं, फाउंड अंडर द स्किन. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 4 मार्क्स है. मसल्स एंड बोन्स, काफी सारी जगहों पे ये. यू गेटिंग दिस? ओके. एंड एरियोलर टिश्यू इज बेसिकली, इट कंटेन्स, किस चीज का बना हुआ है ये? इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. हम कब से फाइबर्स की बात कर रहे हैं? देखिए, कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग प्रकार के फाइबर्स रहते हैं, ये जस्ट 2 मिनट पहले हमने लिखा था. दे कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. एरियोलर टिश्यू की बात कर रहे हैं, एंड 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इनटू इट. देखिए, इंफॉर्मेशन बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे. हमें इन दोनों फाइबर्स के बारे में और ये चारों सेल्स के बारे में भी बात करना है. समझ रहे हैं? ओके. बेसिकली आपके स्किन के नीचे है. स्किन तो इपिथेलियल टिश्यू, इमीडिएटली इपिथेलियल टिश्यू के नीचे कौन है? इपिथेलियल टिश्यू के नीचे इमीडिएटली कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ एरियोलर टिश्यू. ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ये बफरिंग का काम करता है. मूविंग अहेड, आप 2 फाइबर्स की बात कर रहे हैं. कौन से हैं वो 2 फाइबर्स? The 2 fibers are in the form of white fiber and yellow fibers. White fibers and yellow fibers. अभी देखिए, ये white fibers जो है, इनकी खासियत लिखेंगे अपन पहले. ये व्हाइट कलर के हैं क्योंकि इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है. दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज, व्हाइट फाइबर्स कंटेन अ प्रोटीन कॉल्ड एज कोलेजन. क्या कहते हैं उसको? कोलेजन. प्लीज कीप दिस इन माइंड, ऑलवेज एसोसिएट व्हाइट फाइबर्स विद कोलेजन. कोलेजन इज अ प्रोटीन. मैं, आप चाहे तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद वो ये ऐड करता हूं पॉइंट, कि इन्हें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहते हैं.
ये इनकम्प्लीट रखा है मैंने, मुझे पहले ये कंप्लीट करने दीजिए। एरियोलर टिश्यू में बहुत सारे व्हाइट फाइबर्स रहते हैं। ये कैसे रहते हैं? The white fibers, they are found in bunches. भीड़ देखिए इनकी कितने डेंसली पैक्ड है, देखिए। White fibers, they are white, they appear white because they contain collagen. They are found in bunch. They are found unbranched. देख रहे हैं क्या आप? ओके, हमने कहीं भी फाइबर को ऐसा ब्रांचिंग नहीं दिया है कहीं भी. They are unbranched, and basically because of collagen they provide strength to the tissue. एरियोलर टिश्यू को आप देखिए, आप कहीं पे गिर गए, कुछ एनी मटेरियल, एनी ऑब्जेक्ट आपको लग गया, इट हिट यू, इमीडिएटली आपका स्किन जो है वो ऐसा टोर्न अपार्ट नहीं हो जाता है. ये क्यों? क्योंकि स्किन के नीचे जो एरियोलर टिश्यू है उसके पास स्ट्रेंथ है. आप ऐसा खींच देंगे थोड़ा सा. Sometimes some of the people, they are interested, they have this habit of pinching their friends or anyone who is sitting next to them. Pinching में भी देखिए, if you are pinching someone, ये स्किन ऐसा निकल के नहीं आएगा. स्किन के नीचे एरियोलर टिश्यू जो है वो इस स्किन को पक्का पकड़ के रखा है उसने, नीचे के मसल्स को भी उसने ठीक तरह से पकड़ के रखा हुआ है, और उसके पास स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है. एरियोलर टिश्यू इज हैविंग स्ट्रेंथ आल्सो एंड फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो, जिसमें का स्ट्रेंथ पार्ट जो है वो स्ट्रेंथ पार्ट उसको मिला है बिकॉज ऑफ द व्हाइट फाइबर्स. I hope you are able to see the diagram. दो प्रकार के फाइबर्स देखने हमें, एक है व्हाइट फाइबर, दूसरा है येलो फाइबर्स. अभी येलो फाइबर इज कंटेनिंग और इट अपीयर्स येलोइश इन कलर बिकॉज इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड एज, क्या नाम है प्रोटीन का? दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज इलास्टिन. येलो फाइबर्स contain a protein called as elastin. Collagen and elastin are proteins, but what type of proteins? They are structural proteins. They provide a proper structure to the areolar tissue. That's why they are called as structural proteins. Okay, अभी इस नाम से काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है आपको. ओके, इलास्टिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ ये पता रहनी चाहिए. इलास्टिन जो है I hope you are able to understand the difference between white fibers and yellow fibers. येलो फाइबर्स देखिए बंच में मिल रहे थे, ये सॉरी व्हाइट फाइबर्स जो है ये देखिए ऐसे बंच में ग्रुप में थे. येलो फाइबर्स का नहीं है. येलो फाइबर्स दे ऑलवेज अपीयर सिंगल, देखिए सिंगल लाइंस, लेकिन दे ऑल्सो शो ब्रांचिंग. देखिए आपका ये एक येलो फाइबर है, इसको यहां से ब्रांचिंग आ रहा है.
आपका ये एक येलो फाइबर है, इसको यहाँ ब्रांचिंग आ रहा है, तो दे शो ब्रांचिंग. एंड एज द नेम सजेस्ट, yellow fibers presence, because of yellow fibers provide elasticity to the areolar tissue. जैसा मैंने आपको स्किन के बारे में बताया, स्किन हैज स्ट्रेंथ, ऐसा उसको पिंच किया या खींचने का कोशिश किया तो वो ऐसा उखड़ के आने नहीं वाला है. स्किन हैज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ व्हाइट फाइबर, स्ट्रेंथ इज बिकॉज ऑफ कोलेजन. But at the same time, skin is also flexible in nature. It also shows elasticity. That elasticity is because of yellow fibers, because yellow fibers contain elastin, and these yellow fibers, due to elastin, they provide elasticity to the areolar tissue. You are getting this? Okay. Moving ahead. दो प्रकार के फाइबर्स तो देख लिए हमने. अभी हमें आगे क्या बात करनी है? वी हैव टू टॉक अबाउट 4 different types of cells present in this. Now those cells, cell number 1 are called as fibroblast cells. What are they? Fibroblast cells. Generally they are star shaped cells. These are your फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. अभी नाम ध्यान रखिए उसका. पहले तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय हार्ट दीज नेम्स. व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स, यू हैव टू बाय हार्ट दीज नेम्स. कोलेजन, इलास्टिन, 4 प्रकार के सेल्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. फाइब्रोब्लास्ट नाम से ही समझ लीजिए. देखिए यहाँ पे आप फाइबर्स की बात करें और यहाँ आप फाइब्रोब्लास्ट सेल्स की बात करें. फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर बेसिकली कंसर्न्ड विथ the synthesis and production of these 2 fibers, the white fibers and yellow fibers. The synthesis of these fibers is done by the fibroblast cells. Fibers का production fibroblast cells. आसान है, don't worry. दूसरा है इसमें मैक्रोफाजेस. इनका नाम ही मैक्रो है. मैक्रो यानी बहुत बड़े. एज कंपेयर टू एनी अदर सेल्स, ये बहुत ही बड़े सेल्स है. मैक्रो इज बिग. फाज, ये वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. फाज का मतलब है, फाज का मतलब आपको बाय हार्ट रहना चाहिए. ये आपका हॉबी है. दिन भर में अगर कोई काम आप ठीक से करते तो दैट इज फाज. फाज का मतलब है, it means to eat. Macrophages, macro आप उसका साइज बता रहे कि इट इज ह्यूज. फाज मीन्स टू ईट. मैक्रोफाजेस क्या करते हैं? इस टिश्यू में कोई भी अनवांटेड मटेरियल अगर दिख गया तो उस अनवांटेड मटेरियल को ये एनगल्फ कर लेंगे, ये खा लेंगे. और इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, मैक्रोफाजेस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम्स है कि ये जो वेस्ट मटेरियल, उसको सेल डेब्रीज कहते हैं, अनवांटेड मटेरियल. उन सेल डेब्रीज को एनगल्फ करके उनको पूरी तरह खत्म करने का काम मैक्रोफाजेस करते हैं. जैसा प्रीवियस चैप्टर में हमने लाइसोसोम्स के बारे में बात किया था. थोड़ा जाइए उधर, look into that video or look into the notes that you have written about lysosomes. Lysosomes also do the same thing. While they are moving around, while they are roaming around inside the cells, inside
एनी पर्टिकुलर सेल, सेल के अंदर की साफ सफाई करने का काम ये लाइसोसोम्स करते हैं। वैसा टिश्यू के अंदर साफ सफाई का काम कौन करता है? मैक्रोफाजेस। इसमें तीसरा एक प्रकार है सेल्स का, इट इज कॉल्ड और दे आर कॉल्ड एज द, मस्त सेल्स नहीं बोलने का, ये मैस सेल्स है। मैस सेल्स की खासियत ऐसी है कि मैस सेल्स दे कंटेन टू इंपॉर्टेंट केमिकल्स इन देम। एक केमिकल का नाम है हेपेरिन और दूसरे केमिकल का नाम है हिस्टामाइन। हेपेरिन एंड हिस्टामाइन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं। मैं आपको इनका काम क्या है ये बताने से पहले, मैस सेल्स, इनका काम क्या ये बताने से पहले मुझे आपको एक, आपके बॉडी में होने वाले एक जनरल रिएक्शन के बारे में मुझे आपको बताना है। Whenever we get any injury, now yesterday at home while doing some work, I injured one of my fingers, and it started a very normal kind of a very low grade bleeding started from that injured part of the finger. Fortunately, it was a very small injury, nothing to be worried or bothered about. But okay, blood started flowing. But that blood was flowing for just a few minutes. Later on, automatically that blood loss and that blood flow stopped automatically out of the injury. And you know this is not something unique. This is happening in everyone's body. Even you have experienced this. Whenever we are getting an injury, naturally there is certain amount of blood loss. लेकिन ऐसा नहीं होता कि मुझे एक बहुत बड़ा इंजरी हो गया है और उसमें से मेरे बॉडी का पूरा जितना भी लीटर ब्लड होगा वो पूरा वॉश आउट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि हमारे बॉडी को एक नेचुरल टेंडेंसी ऐसी है दैट व्हेनेवर देयर इज एनी कट, व्हेनेवर देयर इज एनी इंजरी एंड वंस द ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट, ऑटोमेटिकली सर्टेन chemical reactions, biochemical reactions occur on that injured site in such a way that that injured site automatically gets sealed off and the blood loss is arrested and stopped. आपको पता है मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लड कोएगुलेशन। आपने ये दोनों नाम सुने हुए। ब्लड क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले ने ये डिजाइन करके रखा है हमारे बॉडी में सो दैट वी डोंट डाई by blood loss. समझ रहे हैं आप? ब्लड क्लॉटिंग इज इंपॉर्टेंट, बट देन यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ये ब्लड का स्वभाव है, ये ब्लड का नेचर है कि अगर ऐसा इंजरी में से ज्यादा ब्लड लॉस होने लगा तो ब्लड कुछ ऐसे काम करता है कि अपने आप उस इंजरी को सील कर देता है और ब्लड का ये फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन आप सोचिए ये जो ब्लड क्लॉटिंग का सिलसिला है ये तभी होता है जब ब्लड ये बॉडी के बाहर बहना शुरू होता है, इंजुरी के बाहर बहना शुरू होता है। फॉर्चुनेटली व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड माय बॉडी तब ये जम नहीं जाता, तब ये क्लॉट नहीं हो जाता। देखिए ब्लड तो वही है लेकिन ब्लड को पता है कि मैंने कहां पे क्लॉटिंग करना है और कहां पे क्लॉटिंग नहीं करना है। फॉर्चुनेटली while the blood is flowing inside my body it doesn't get clot. अगर बॉडी के अंदर क्लॉट हो गया तो I can very well die at this instance. डेंजरस है वो सिचुएशन। फॉर्चुनेटली वाइल फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी द ब्लड डज नॉट क्लॉट, क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स है जिनको पता है कि ब्लड जब बॉडी के अंदर है विद इन द ब्लड वेसल्स जब वो बह रहा है बॉडी के अंदर तब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो है वो है हेपेरिन। हेपेरिन काम क्या करता है? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे। हेपेरिन इज एंटी क्लॉटिंग एजेंट। क्या है वो? एंटी क्लॉटिंग एजेंट। एंटी यानी अगेंस्ट। When your blood is flowing inside your body, inside your blood vessels, that time it should not get clotted. And to avoid that clotting of the blood within the body, your body
योर ब्लड कंटेन्स हेपारिन। हेपारिन है तो ब्लड के अंदर, लेकिन वो एक्चुअली सिंथेसाइज किसने किया है, प्रोड्यूस किसने किया है, मास्ट सेल्स, एंड मास्ट सेल्स आर पार्ट ऑफ एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू इज पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इंफॉर्मेशन बहुत सारा है, हम बार बार रीड करेंगे, डोंट वरी। दूसरी बात है हिस्टामाइन। शायद आपने कहीं तो भी ये प्रोटीन के बारे में ये टर्म शायद कहीं तो भी सुना होगा, लेकिन अगेन बिफोर आई टेल यू व्हाट इज हिस्टामाइन, फिर से इंजुरी के बारे में सोचेंगे हम थोड़ा सा। आप इंजुरी के बारे में सोचिए, या फिर आप सोचिए कि सपोज यू गेट अ मस्कीटो बाइट, वहां भी आपका टिश्यू इंज्योर हो जाता है, या आते जाते कहीं तो भी खेलते कूदते कहीं तो भी आपको थोड़ा सा कहीं तो भी यू ब्रूस्ड योर स्किन समवेअर, मराठीमध्ये आपण खरचटणे असं म्हणतो त्याला, ओके, जस्ट हल्का सा ऊपरी इंजुरी है, वो वेरी सुपरफिशियल इंजुरी। लेकिन आपने देखा होगा जब भी इस प्रकार का कोई सुपरफिशियल इंजुरी हो जाता है, या इफ देयर इज एनी इंसेक्ट बाइट और एनीथिंग, उस एरिया में जहां पे टिश्यू इंज्योर हुआ है, उस एरिया में हमको पेन महसूस होता है, हमें रेडनेस दिखाई देता है, वहां पे थोड़ा सा स्वेलिंग दिखाई देता है हमको। मैंने देखिए आपको क्या क्या बताया, आई एम टॉकिंग अबाउट एट एन इंज्योर्ड साइड देयर इज रेडनेस, देयर इज स्वेलिंग, देयर इज पेन। ये जो सिम्टम्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है, अच्छे सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स एक्चुअली बॉडी को और इम्यून सिस्टम को बता रहे कि अरे इधर इंजुरी हो गया है, प्लीज कम एंड हेल्प मी, प्लीज रिपेयर इट, उसको ठीक करो, इट इज गुड। और ये जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, इन सिम्टम्स को कलेक्टिवली कहते हैं क्या कहते हैं इनको, इन्फ्लामेशन कहते हैं इनको। Together they are called as inflammation. So that redness and swelling that I can see on an injured area of my body, that redness, that swelling, that pain, now I can say कि अरे यहाँ पे redness है, यहाँ पे थोड़ी सूजन यानी swelling आ गया है, यहाँ मुझे पेन हो रहा है, यानी ये मेरा बॉडी उस एरिया में क्या कर रहा है, इन्फ्लामेशन है, मेरा बॉडी वहाँ पे इन्फ्लामेशन जनरेट कर रहा है। वो सिग्नल है आपके बॉडी के लिए कि अरे इधर कुछ तो भी ट्रबल हो गया है, वो ट्रबल को सॉल्व करने आ जाओ। बॉडी के अंदर के सेल्स को और प्रोटीन्स को बताया जाता है कि प्लीज हेल्प अस इन दिस रीजन। तो इट इज अ पॉजिटिव थिंग, इन्फ्लामेशन इज अ पॉजिटिव थिंग। हम इन्फ्लामेशन की बात क्यों कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, हिस्टामाइन की वजह से होता है। हिस्टामाइन causes inflammation and dilation of डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। अभी हिस्टामाइन की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, यानी क्या हो रहा है अभी आपको समझ में आ रहा है। उस इंजर्ड साइट पे ये जो सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, रेडनेस है, स्वेलिंग है, पेन है, इसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। उस एरिया में इन्फ्लामेशन इसलिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मुझे कोई इंजुरी हो गया, स्किन के इमीडिएटली नीचे एरियोलर टिश्यू है, इसका मतलब अगर मुझे इंजुरी हो रहा है यानी एरियोलर टिश्यू को इंजुरी हो रहा है। एरियोलर टिश्यू को जब इंजुरी होता है तो उसके जो मास्ट सेल्स है, इंज्योर्ड टिश्यू, इंज्योर्ड एरियोलर टिश्यू के जो मास्ट सेल्स है, दे स्टार्ट रिलीजिंग हिस्टामाइन इन दैट एरिया। हिस्टामाइन की वजह से उस इंज्योर्ड पार्ट में ये सिम्टम्स दिखाई देने देते हैं, यानी इसका मतलब उस एरिया में इन्फ्लामेशन शुरू होता है। इन्फ्लामेशन के प्रोसीजर का और एक पार्ट है डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। डायलेशन यानी क्या, देखिए आपका ब्लड वेसल जो है उसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है। दो वर्ड्स यूज करते हैं हम यहाँ पे, डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ तो डायलेशन ही बोला है। डायलेशन का मतलब क्या, ये ब्लड वेसल आप देखिए, इसका मैंने डायमीटर कितना दिखा है। ब्लड वेसल जब डायलेशन होता है, ब्लड वेसल का डायलेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका डायमीटर ये थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेचुरली इसमें से फ्लो होने वाला ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा। आपने जगह ज्यादा दे दी ना,
ये देखिए आपके घर के अंदर, आपके हॉल के अंदर सपोज 20 लोग खड़े हैं और उन्हें घर के बाहर जाना है, उन्हें घर के बाहर जाना है, ओके। वो आपके घर के बाहर निकले और आपका कंपाउंड है, आपके घर का या आपके बिल्डिंग का, अपार्टमेंट का, सोसाइटी का कंपाउंड है, उस कंपाउंड को 2 गेट्स है, ओके। तो ये भीड़ जो है इसे आपके कंपाउंड के बाहर निकलना है, आपके घर के, आपके अपार्टमेंट के कंपाउंड के बाहर निकलना है। 2 गेट्स दिख रहे हैं हमको, एक छोटा सा गेट है, आपने ऐसा वो खोल दिया, एक 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 स्लोली भीड़ 1-2 करके बाहर निकल रही है। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि वो गेट छोटा है एंड नंबर ऑफ पीपल तो बहुत सारे, तो उस गेट के आसपास बहुत सारा भीड़ जमा हो जाता है, प्रेशर जनरेट होता है क्राउड का। एज कंपेयर टू दैट, उसी कंपाउंड में एक बहुत लंबा चौड़ा गेट है, जनरली 4 व्हीलर्स के एंट्री का जैसा गेट रहता है, आपने वो पूरा गेट खोल दिया। तो क्योंकि गेट का साइज बढ़ गया है, पहले जैसा 1 या 2 ही इंसान बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और बाहर निकल पा रहे थे, अभी कैसा हो रहा है 10-12 लोग एकदम एक साथ बाहर निकल रहे, क्योंकि देयर इज अ वाइड ह्यूज गैप इन बिटवीन। अपने आप बड़े आराम से वो भीड़ बाहर निकल जाती, किसी भी प्रकार का प्रेशर जनरेट नहीं। डायलेशन का मतलब यही है कि आपका ब्लड वेसल्स जो है, ये ब्लड वेसल थोड़ा डायलेट हो गया है। ब्लड वेसल जब डायलेट होता है, जिस एरिया में ब्लड वेसल डायलेट होता है, उस एरिया में ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसके अगेंस्ट दूसरा एक वर्ड हम यूज करते हैं, ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्शन। यहां तो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं इन जनरल बता रहा हूं। डायलेशन यानी ब्लड वेसल थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, वाइड हो गया है, उसमें का ब्लड फ्लो स्लो हो गया है। यानी जहां भी वेसल डायलेशन होता है उसको वैसोडाइलेशन भी कहते हैं। जहां भी ब्लड वेसल डायलेट होता है उस एरिया में ब्लड प्रेशर कम होता है। उसके अगेंस्ट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर आप कहेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, एक्चुअली ब्लड वेसल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। इधर देखिए उसका, यहां कितना डायमीटर था ब्लड वेसल का, और यहां देखिए यहां पे डायमीटर कम हो गया। तो डायमीटर अगर कम हो गया, इसका मतलब द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर पुटिंग प्रेशर ऑन द ब्लड एंड द ब्लड विल स्टार्ट फ्लोइंग मच रैपिडली, फास्ट भागेगा फिर। यानी अगर ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वैसो यानी वेसल, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर हुआ तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वैसो डायलेशन अगर हुआ तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। हिस्टामाइन ये इन्फ्लामेशन तो ट्रिगर करता ही है, शुरू करता ही है इंजर्ड साइड पे, लेकिन उसके साथ ही हिस्टामाइन आल्सो कॉजेस डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल इन द इंजर्ड एरिया। डायलेशन की वजह से उस एरिया में ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है। देखिए जहां पे इंजुरी है वहां पे अगर ब्लड प्रेशर फास्ट रहा तो बाहर लॉस ऑफ ब्लड भी ज्यादा हो जाएगा। सही बात है ना? आई होप यू अंडरस्टैंड कि वहां वाइसोडाइलेशन क्यों करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि वहां पे ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर हमें क्यों कम करना जरूरी है। वहां जाने वाले ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो अपने आप आपका लॉस ऑफ ब्लड थ्रू द इंजुरी कम हो जाएगा। फॉर्चुनेटली ये दोनों काम कौन करता है? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन कौन सिक्रेट करता है? मैस्ट सेल्स। मैस्ट सेल्स किसमें? एरियोलर टिश्यू में। एरियोलर टिश्यू किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। हमने शुरुआत में ही देखा कि आपका एरियोलर टिश्यू जो है इसमें 2 प्रकार के फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स और येलो फाइबर्स, और 4 प्रकार के सेल्स है। पहला सेल है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफाजेस, तीसरा प्रकार हमने देखा मैस्ट सेल्स, और लास्ट पार्ट, द लास्ट टाइप ऑफ सेल्स present in the areolar tissue are called as adipocytes. टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन हमको पता रहना चाहिए। एडिपोसाइट्स के बारे में 2 ही बातें बताऊंगा मैं। एक, दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, at least in the areolar tissue they are very few in number, and उनका काम क्या है? दे स्टोर हमारे शरीर में हम जिस चीज को चर्बी कहते हैं, खरबी नहीं, ओके,
चर्बी हम जिसको कहते हैं, यानी वो चर्बी यानी फैट कंटेंट है। टीवी में दिखाते हैं ना, वो अलग अलग बेल्ट पहनी है, हमारा ये ड्रिंक पीजिए, हमारा ये काढ़ा पीजिए, आपका वजन, आपकी चर्बी इमीडिएटली कम हो जाएगी। देखिए, मेहनत करने से ही चर्बी कम हो सकती है। घर में टीवी के सामने बैठ के चर्बी किसी की अब तक तो कम नहीं हुई है। लेकिन ये चर्बी यानी क्या है? ये चर्बी यानी फैट है। इस चर्बी को फैट्स कहते हैं, इसी चर्बी को एडिपोज भी कहते हैं। ओके, एडिपोज टिश्यू आपने लिखा है, आप अगर आपका वो ट्री डायग्राम देखेंगे उसमें हमने एरियोलर टिश्यू के बाद एडिपोज टिश्यू ही कहा है। तो ये एडिपोज टिश्यू, ये चर्बी यानी एडिपोज टिश्यू है। लेकिन हम आज इमीडिएटली एडिपोज टिश्यू का बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल तो एरियोलर का ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि एरियोलर टिश्यू के अंदर भी थोड़ा थोड़ा फैट स्टोरेज है, फैट्स यानी एडिपोज, और वो एडिपोज को स्टोर करने वाले जो सेल्स है, दोज आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। गॉट इट? ओके, आई थिंक काफी सारा इंफॉर्मेशन आज हमने बात किया है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं अगले टिश्यू की तरफ नहीं जाता हूं। एडिपोज टिश्यू का पार्ट हम कल देखेंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक दिस इज गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, large amount of information. You need to by heart it, because regularly questions come. And let me tell you, please look into this diagram properly, the one that is given in your textbook, because you will be surprised to know NEET exam also please expect diagram based questions in the NEET exam. और स्पेसिफिकली एरियोलर टिश्यू का डायग्राम तो उनका फेवरेट है, क्योंकि एरियोलर टिश्यू में बहुत सारे नाम हैं। आपको 2 प्रकार के फाइबर्स ढूंढने उसमें, आपको 4 प्रकार के सेल्स ढूंढने उसमें, इसलिए टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है उसको ठीक से देखिए। मैक्रोफाजेस कैसे दिखते हैं, मोनोसाइट्स सॉरी आपके मैस्ट सेल्स कैसे दिखते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स कैसे दिखते हैं, वो ठीक से देखिए। आपको समझ में आना चाहिए कि अगर बंडल्स में क्राउडेड अगर रहा तो वो व्हाइट फाइबर्स है, सिंगल अगर रहा तो वो येलो फाइबर्स है। हम क्या करते हैं, हम जस्ट ऐसा डायग्राम देख लेते हैं, हाँ मैं समझ गया, चले जाते हैं एग्जाम को। एग्जाम में फिर क्या आता है, एग्जाम में वो नाम नहीं देते। एग्जाम में वो क्या करते हैं, जहां येलो फाइबर्स लिखा है, येलो फाइबर्स की जगह वो ए देते हैं, व्हाइट फाइबर्स की जगह वो बी देते हैं, और फिर सवाल पूछते हैं वो आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तभी हमारे ध्यान में नहीं आता, क्योंकि हमने जस्ट ऐसा सुपरफिशियली हाँ ठीक है समझ गया मैं, चलो आगे। वैसा मत कीजिए। व्हेन यू आर लुकिंग एट द डायग्राम, स्पीक विद द डायग्राम, एक्सप्लेन योरसेल्फ व्हाट इज इन द डायग्राम। आप खुद को बताइए कि ठीक है बाबा, इसमें व्हाइट फाइबर्स है, बंडल्स में है, उनका ब्रांचिंग नहीं है। इसमें येलो फाइबर्स है, सिंगल है लेकिन ब्रांच्ड है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, इसमें मैक्रोफाजेस है, इसमें। ये खुद को एक्सप्लेन कीजिए। डायग्राम आपने खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए, तभी जाके वो आपके दिमाग में ठीक से बैठेगा। You got this? Okay, so this is huge amount of information related to the areolar tissue. We will continue in the next lecture discussing the topic of more information related to connective tissue. We will stop here today. Have a good day. Thank you very much.